Hello students, today we deal about the set theory. Here we will discuss some basic notations and some basic properties of the sets. Now, first of all we will go through about the definition of the set. Set, a set is a well-defined collection of elements. Is a well-defined collection of elements. एक सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ एलिमेंट का. व्हाट डू यू मीन बाय द वेल डिफाइंड? एक्चुअली अगर आप हमारे पास कोई भी सेट गिवन होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव द सेट ऑफ वॉवेल्स s, that is a s equals to a comma e comma I comma o comma u, the set of vowels. If we pick up any point from the universe, that is for example we pick up the x, so it is quite clear that x, either x belongs to the set or x does not belong to the set. So as we see that x does not belongs to the set s, is not the part of the set s. वो सेट s के अंदर लाई नहीं करता है, और ये बहुत क्लियर है. a belongs to a, and it is very clear that a is the part of the set s. So there is no ambiguity between the elements and the set. Either it is the part of the set or it does not part of the set. Okay, so here there are two forms of sets. First is roster form. Second one is set builder form. First is roster form and second one is set builder form. सो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है, सेपरेटेड बाय द कोमास. जैसे कि आप सेट को ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल s इक्वल्स टू a e I o u. So it is in the form of the elements separated by the commas. For example, another example, s equals to 1 2 3 4 and 5. So the elements of the sets are very clear. Okay, and what about the set builder form? In this method, a set is described by characterizing properties, just like the set s contains the elements of type x such that x is a natural number. X is a natural number. सेट एस के एलिमेंट जो है ना एक्स एक्स की तरह के होंगे और एक्स एक नेचुरल नंबर होगा. आपने उसे कैरेक्टराइज कर दिया है ना, उसको उसकी प्रॉपर्टी बता दी. तो ऐसे आप बता सकते हैं. अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, द सेट एस which contains the element of type x such that x is an even number. X is an even number. लाइक अगर आप इस सेट की बात करें, सेट के जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी. और इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे लाइक 2 4 6
8, 10, and dot 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 up to infinity. So दो फॉर्म है आपके पास यहाँ पे सेट्स की, सेट बिल्डर फॉर्म है और सेट रोस्टर फॉर्म है. नाउ further we will discuss about the types of the set. Types of sets. First of all, we talk about the empty set. So what do we mean by the empty sets? A set is said to be empty or null set or zero set if it has no elements. Okay, a set is said to be empty sets null set or zero set if it has no elements. If it has no elements, for example, and it is denoted by phi symbol, and it is denoted by the symbol phi. Okay, so for example, the set S uh, contains the elements of type X such that X lie between 1 and 2 and is a natural number and is a natural number. So it is quite clear that there is no such element which lie between 1 and 2 and is a natural number. So this empty is nothing, this set is nothing but the empty set. There is no element in this set. There is no such element which satisfies this property. So there is no element which belongs to this set. So this set is empty. Now we will move to the finite set. Second number, we will talk about the finite set. A set contains finite number of elements. A set contains finite number of elements. A set contains finite number of elements. For example, is called a finite set. You can say is called a finite set. For example, the set S equals to 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Another example, the set S equals to collection of all all alphabets. Okay, so there are 26 alphabets in English. Okay, so it is a finite set. Further,
we will go the cardinal number, cardinality of a set. So the total number of element in the set, the total number of elements in the set is called a cardinal number of a set, or cardinality of a set. So, for example, uh, the cardinality of a set S is S if we have the element of S is like this 2, 4, 6, 10, 12, then the cardinality is denoted by this symbol, okay? Is nothing but the 2, 4, 6, I think 5. There are 5 number of elements in this set, okay? Now we will go in the for the next type of sets, that is infinite set. A set contains infinite number of elements. A set contains infinite number of elements. It's called infinite set. For example, for example, uh, the set of natural number that is denoted by n, the set n of natural number, uh, there are 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, and it's up to infinity. It will go up to infinity. So there are infinite number of elements in the set. And the set of integers, the set of integers that is 0, comma plus, comma plus, minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and it will go up to infinity. And the set of real numbers, and the set of real numbers, that is x, says that x is a real number. So these are the examples of infinite set. These are the examples of infinite set. Now, next we deal with the equivalent set and the equal sets. Equivalent sets, ये आपका फोर्थ टाइप में आ जाएगा. Equivalent set. Two sets are equivalent. Two sets are equivalent if they have same number of elements. They have same number of elements. For example, the set A contains 5 elements 1, 2, 3, 4, 5, and the set B contains 5 elements A, E, I, O, U. Both the sets are equivalent because the cardinality of both the same,
both the sets are same. Okay, so it is an example of equivalent sets. Here we can take another one example too. For example, n, uh, the set n is stand for the natural number, and the set I, the set stand for the set of integers. I stand for the set of integers. Both are equivalent set because the cardinality of both the sets are infinite. So both are equal. So the set of natural number and the set of integers are equivalent set. Now we will go with the fifth, equal sets. Equal sets. So two sets are said to be equal, are said to be equal if they have same number of element, same number of elements, and same elements, and the same elements. They have the same number of elements and the same elements. For example, if you talk about the set A, which has the elements 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, and the set B contains the element of type X such that X lie between 2 and 10, and X is an even number, and X is an even number. So both these sets are equal sets because both these sets have the same element, same number of element, and the same element. Okay. So these are the some types of sets. Here we will go to the subset. How we will define the subset. Okay. How we will define the subsets. Here, subsets can be defined as let A, capital A, and capital B be two sets. Be two sets. A is said to be subsets of B. The set A is said to be subset of B if each element of A belongs to B. Belongs to B. Or mathematically, we can say if for all for all x belongs to A, this implies x belongs to B. And this implies that XA is the subset of B. Is the subset of B. Because every element of A is the part of B. Every element of A is the part of B. So here we can see it geometrically like this. If it is the set B and it is the set A, so it is clear that every element of A is the part of B. Okay, so A is the subset of B. A is the subset of B.
here we talk about total number of subsets corresponding to a set. एक सेट के कोरेस्पोंड में कितने सबसेट बन सकते हैं? पहले हम यहाँ पे सम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सबसेट के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है ए जो कि आपके पास 1 2 3 4 5 which contain 5 elements, and दूसरा सेट है बी, the set of natural number, the set of natural numbers. And we know very well aware that 1 belongs to b क्योंकि नेचुरल नंबर है, और 2 belongs to b क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, 3 belongs to b क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, 4 belongs to b क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, 5 belongs to b क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि all the element that is x, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने चूज कर लिया कि x belongs to a implies कर रहा है कि x belongs to b is the part of b. So this implies that a is the subset of b. A is the subset of b. Okay? कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, लेकिन b के सारे एलिमेंट a के अंदर नहीं है ना, तो a b का सबसेट हो जाएगा यहाँ पे। So there are infinite number of such examples. अब हम बात करते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। चलिए इसको एक सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, इसको बनाना भी सीखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखेंगे। अच्छा, ताकि आप एग्जाम में अगर भूल भी जाएं तो उस चीज को कैसे रिकॉल कर सकते हैं। एक सेट ए है आपके पास, और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट है। तो पहले मैं बता दूं कि इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे। किसी भी सेट के दो सबसेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के, ये सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स है। A set without element is empty set. A set with elements is non-empty set. तो अगर हम सबसेट्स की बात करें तो 5 the set A itself, 1 2, ये सिंगलटन सेट है, ये भी हम इंट्रोड्यूस करना बीच में भूल गए। सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं? The sets contains the single elements are called singleton sets. तो ये सब सिंगलटन सेट्स हैं। और उसके बाद फिर आप सेट ले सकते हैं 1,2, तो उसके बाद आप एलिमेंट ले सकते हैं 1,3, देन वी कैन टेक 2,3, ओके, एंड देन वी कैन टेक आई थिंक it's completed. Okay, now these are the subsets of this set. एम्प्टी सेट तो हर किसी का सबसेट होगा, सेट खुद अपना सबसेट होता है, ये सिंगलटन सेट आएंगे। यानी कि अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी सेट अगर आपके पास है, उसके पास दो सेट तो ऐसे, दो सबसेट तो ऐसे होंगे जो हमेशा आएंगे। कोई भी सेट से मतलब है नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपके पास है तो उसके पास दो सबसेट ऐसे होंगे जो हमेशा आएंगे, एक तो 5 और एक सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ। तो ये जो दोनों सबसेट्स आपके पास होते हैं, इनको इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। और द रेस्ट सबसेट जो है आपके पास आर नोन एज प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट। ओके, यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, ए की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी थी, 3 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स equals to 8. Okay, now similarly we will go with another example. अच्छा, चलिए हम एक काम करते हैं,
अब इसके डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं कि हम सेट्स कितने बना सकते हैं, एक सेट के पास कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है, कितने सबसेट हो सकते हैं. For example, if we have a set A, another example we are picking up here. A set A contains two elements or one element. Okay, a set contains one element. तो ये सिंगलटन सेट है और ये नॉन एम्प्टी सेट भी है. तो जाहिर सी बात है आपके पास दो सबसेट तो एकदम आएंगे, 5 और सेट 8 सेल. ये दो सबसेट तो आपके पास होंगे. इसके अलावा कुछ बचता नहीं इसमें सबसेट बनाने के लिए, है ना. तो ये 2 की पावर आप 1 कह सकते हैं इसे. 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2. तो दो सबसेट आपके पास बन जाएंगे. अगर आप दूसरा यही सेट लें ए और इसमें दो एलिमेंट हो 1,2, तो इसमें एक तो 5 आ जाएगा, एक सेट खुद आ जाएगा, उसके बाद सिंगलटन सेट करके आ जाएंगे 1 2, उसके बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद तो फिर ए आ जाएगा. अगर आप दोनों एलिमेंट लेंगे तो वो आ चुका. तो इसके पास होगी 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स, है ना. तो इसी तरीके से आप अगर ए के पास 3 एलिमेंट है, आपके पास 1 2 3, तो इसके पास कितने एलिमेंट बन जाएंगे 5. और ए तो आएगा ही, उसके बाद ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये हम ऊपर निकाल भी चुके हैं यहाँ पर, है ना. तो इसको रेफरेंस कर देते हैं. इसके पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे. तो सिमिलरली the story will go up to n number of elements in the set. If a cardinality of A is n, means that कि अगर सेट A के अंदर n number of element है, then the total number of subset are 2 to the power n. Then the total number of subsets are 2 to the power n. Clear? इसके पास 2 to the power n number of elements होंगे. और इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी एक सेट के में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू n. ओके, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके पास. तो आप कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आते हैं, वहां से हम ले सकते हैं कि 1 के पास में सबसेट बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. कि जैसे कि एक्चुअली अब इस मेथड से भी हम एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा लेते हैं, 1 और 2, है ना. तो 1 को मैं सेट के अंदर रखूं या ना रखूं, सबसेट बनेगा. मुझे एक सबसेट बनाना है इससे, तो मैं 1 को दूसरे सेट का पार्ट बनाऊं जिसको मुझे सबसेट बनाना है या नहीं बनाऊं. फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट बी है, मैं इसके अंदर 1 रखूं या ना रखूं, सबसेट बनेगा क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा. 1 रख दे तो नॉन एम्प्टी सिंगलटन सेट बन जाएगा. ठीक है. तो 1 को मैं रखूं या ना रखूं तो सबसेट बनेगा. यानी कि सबसेट बनने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. एंड जब एंड का जिक्र आता है, आपका काम पूरा नहीं होता और आपकी टास्क चलती रहती है, तो मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है वहां पे कॉम्बिनेशन से. जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पे लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ परमुटेशन के लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे. फिर मैं 2 को सेट के अंदर रखूं या ना रखूं, सबसेट बनेगा. ठीक है, सबसेट बनेगा यानी कि 2. अब कोई एलिमेंट बचता नहीं, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4. ठीक. तो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3, तो मैं 1 को इसमें रखूं या ना रखूं, सबसेट बनेगा. 2 को रखूं या ना रखूं, सबसेट बनेगा. 3 को रखूं या ना रखूं तो भी सबसेट बनेगा. तो यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8. तो इसी तरीके से इसमें आप जब आप करेंगे कि 1 को रखें या ना रखें, इसके पास भी दो ऑप्शन सबसेट बनाने के. 2 को रखें या ना रखें, इसके पास भी दो ऑप्शन सबसेट बनाने के. 3 को रखें या ना रखें, इसके पास भी दो ऑप्शन सबसेट बनाने के. तो ये कहानी आपकी चलती रहेगी अप टू लास्ट तक, अप टू एन. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आपका होता है, ये एन टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, एन टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n. तो एक सेट जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके पास टोटल सबसेट 2 की पावर n बनेंगे. 2 की पावर n बनेंगे.
That is, if cardinality of A equals to 4, then the total number of subsets equals to 2 to the power 4, that is equals to 16. तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। और इसका और भी तरीके हैं, चलिए हम थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन को लेके आते हैं। We know that a property of the combination, that is nc1 plus nc2 plus nc3 plus dot 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 plus ncn equals to होता है 2 to the power n, सॉरी nc0 भी होता है शुरू में, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn इक्वल्स टू 2 to the power n। ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो एक्सपेंशन आता है बाइनोमियल से आता है, जब हम बाइनोमियल वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपके पास किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसमें से आप कोई भी एलिमेंट ना सिलेक्ट करें सबसेट बनाने के लिए तो भी सबसेट बनेगा। एम्प्टी जो सेट बनता है, आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं रखा है तो एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। और किस तरीके से सबसेट बना सकते हैं? और इंग्लिश वाला और है यहाँ पे। और जब इंग्लिश वाला और आता है तो लॉ ऑफ एडिशन लगता है, और इंग्लिश वाला एंड आता है तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगता है ना। NC1 एक एक एलिमेंट लेके आप सिंगलटन से सबसेट बना सकते हैं। NC2 उनमें से दो दो एलिमेंट्स लेके आप सिंगलटन सेट आप सबसेट बना सकते हैं। NC3 उनमें से तीन तीन एलिमेंट लेके आप सबसेट्स बना सकते हैं। NCN उनको सारे के सारे एलिमेंट लेके, यानी कि जो सेट खुद होता है वो लेके आप पूरा वो भी सबसेट बन सकता है। तो ये होता है आपके पास 2 to the power है। यहां से भी आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो मेरे ख्याल से देर आर मल्टीपल वेज टू explain the total number of subset of a set. Okay, now further we will discuss about the power set. Power set, what do we mean by the power set? Total number, the collection of total number of subset. The collection of all possible subsets. The collection of all possible subsets. The collection of all possible subsets is called power set. For example, if we talk about the set A, it contains the three elements A, B, C. Then the power set of A is denoted by P of A is nothing but the file and the set itself, and the singleton set A, B, C, and AB is another subset, and BC is another subset, and CA is another subset. CA and AC both are the same. Okay, set does not change on changing its element. वो उसके एलिमेंट को आप आगे पीछे कर देंगे तो सेट चेंज नहीं होता, वो सेट सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कार्डिनलिटी जो सेट के पास तीन एलिमेंट है तो उसकी सबसेट भी 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगी। तो टोटल सबसेट का अगर एक सेट बनाए आप, वो पावर सेट बनता है। पावर सेट के अंदर क्या होते हैं? टोटल नंबर, ऑल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं इसके अंदर, है ना। जितने पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हैं। फिर नाउ वी टॉक अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। इसके अंदर कार्डिनलिटी, जैसी बात है, अगर आप बात करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? भाई इसके अंदर तो टोटल सबसेट होंगे। तो टोटल सबसेट होंगे इफ a cardinality of set is cardinality of set A is n। अगर उसके पास n है तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे इसके पास?
2 to the power n, जितने सबसेट होंगे, सबसेट अभी टोटल अपने ऊपर निकाले 2 to the power n, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 to the power n होगी, ठीक, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी 2 to the power n होगी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, what do we mean, what is the cardinality of power set of A, यानी कि जो पावर सेट है ए का, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो भाई। जैसे कि ए की कार्डिनलिटी n थी, तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होगी, यहाँ पे पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होगी, ये पावर सेट के एलिमेंट्स है, तो वो अपने आप में एक सेट है, उसका भी पावर सेट लेंगे तो 2 की पावर 2 की पावर n, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो व्हाट अबाउट इट्स पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए equals to empty set, and the cardinality of power set of A is 1, because 2 to the power 0, the set A is 0 number of elements, 2 to the power 0 equals to 1. So what about the cardinality of power set of A if A is the empty set? So basically we can write the subset of power set of A, उसके क्या क्या लिखे जा सकते हैं, ये आपके पास में एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये है ना, तो पहले तो फाई तो ऑटोमेटिकली चलाएगा, ये तो आपको देखना ही नहीं, फिर सेट खुद चलाएगा, यानी कि अगर इसकी कार्डिनलिटी की आप बात करेंगे, अगर आप इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो फिलहाल इसमें एक एलिमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने हैं, एक एलिमेंट है, तो यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, ऐसी बात है, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, तो सिमिलरली पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 2 हो जाएगा उसमें। सो ये छोटी छोटी सी बेसिक्स नंबर थ्योरी है बिहाइंड द सेट्स, है ना, बिहाइंड द सेट्स। तो यहाँ की मैं आज के हमने लेक्चर में बेसिक चीजें शुरुआत की, और कल की इसी वीडियो क्लास में हम कुछ टोपोलॉजी ऑफ द सेट्स स्टडी करेंगे, जैसे यूनियन ऑफ द टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, symmetric difference of two sets. Okay, so guys, like, comments and subscribe my this channel, okay, so that I could help you, and if you have any suggestion, so you can give me the suggestion in the comment box. See you in the next class. Thank you very much.